So hello dear students, today we will be again taking the third part and the final part of the chapter pure substances and mixtures. So till now we have studied about the types of mixtures, that is homogeneous and heterogeneous, and we have understood about the characteristics of mixture and how mixtures are formed, that is formation of mixtures. And then we have seen the difference between compounds and mixtures and why water is a compound and air is a mixture. So the next topic which we will start is the need for the separation of constituent of mixture. What is the need? Why should we separate any mixture? What is the need? Why should we separate the constituent of mixture? So first of all, let's see some example. Small stones and husks which are impurities. When your mother is cooking food, she is removing these unwanted stones and husk and other impurities from rice, wheat or pulses. Okay, so before cooking, these impurities need to be removed because they are harmful if we take them in. Second example, we'll see that how do we get common salt? We get common salt when seawater is evaporated. That means because seawater is a mixture of water and common salt. So what we do, we want common salt for our food because of its taste. It adds taste and nutrients. So we need to obtain salt from seawater and thus we separate it. Then next is you get very important or good fuel like LPG, CNG, petrol, diesel, kerosene oil, Vaseline, that is petroleum jelly, and many other products, talc, the powder which you use, from crude petroleum oil. जो पूरा एक heavy crude oil निकलता है नीचे से जमीन से, उसमें से इतनी सारी चीजें हम separate कर लेते हैं. One use of water is that we drink it, and for drinking we should get pure water, and we need pure water to prepare different types of medicines, and in the laboratories, in the car batteries. So we all the impurities should be removed from water. So to get pure water for different purposes, we should remove the impurities from it. So now you have understood that what is the need of the separation of constituent of mixture. क्यों हमें अलग अलग करने हैं जो constituent है. So let's summarize that the separation of constituent of mixture is necessary to remove undesirable and harmful substance. जैसे कि हमने स्टोन और हस्क रिमूव किया था खाने के सामान में से. Then to get useful substance, how we have got common salt from sea water, and to get completely pure substance for preparing other useful substance. For example, we have used crude petroleum to get LPG, CNG, petrol and diesel. So this is the reason why we should separate the constituent. So what is separation? Let's understand the definition. Separation is the process by which the constituents which are forming a mixture are set apart from one another. And why they are set apart from one another? To get some pure substance which are useful to us. तो समझ में आ गया separation? constituents को अलग अलग करना mixture के, ताकि हमें उसमें से pure substance मिल सके. Because we have got many techniques. So how we will decide? We will decide after looking at the type of mixture कि mixture कैसा है, whether it is solid, it is solid liquid, or some part is big and some part is small, they are getting attracted by the iron or not. So all these properties we will see, their size, their shape, the color, density, melting point, boiling point, solubility, magnetic nature, and then we will decide how to separate a mixture. तो अगर हमें tea leaves को separate करना है tea से, तो नेचुरली हम क्या करेंगे, हम इवेपोरेट नहीं कर देंगे टी को और हम टी लीव्स मिल जाएगी हमें, क्योंकि टी तो हमें ड्रिंक करनी है ना. तो वी विल यूज अ मेथड जिसमें टी लीव्स अलग हो जाएं और हमें टी मिल जाए. और वो कौन सा मेथड होगा? बाय फिल्टरिंग इट थ्रू अ स्ट्रेनर. स्ट्रेनर मतलब जो छानने की चीज है. सो बाय यूजिंग स्ट्रेनर we will filter the tea and thus remove the tea leaves. So by looking at the shape of the particles and the nature of the particles, we will try to take out the separation technique. तो अब शुरू करते हैं. सबसे पहले separation of solid mixture. अगर दो solids mixed हैं आपस में, तो उनको हम कैसे कौन सी technique use करेंगे? So first technique is hand picking. Naturally, if I ask you that how will you hand pick anything, you will tell me, ma'am, we can hand pick only the things when the quantity is small. Suppose if I tell you 50 kgs or 100 kgs of things have to be hand picked, that is very, very difficult. So first of all, the quantity should be small. Okay, it should be in
a small portion. और उनका size बड़ा होना चाहिए so that you can see them, you can recognize them, you can hold them with your hand, pick them out. For example, small stones are picked from rice and pulses and spices by this method. Next is, the second method is winnowing. Now what is winnowing? Winnowing is to separate light solids from heavier ones. मतलब जो बहुत हल्के वाले solids हैं, अगर वो किसी चीज़ में मिले हुए हैं भारी वाली चीज़ों में, तो उनको हम रिमूव करते हैं. ये होती है winnowing. What you do? You allow rice or grains which are heavy to fall vertically down. Husk blows away from the air and forms a heap. एक पूरा बड़ा सा heap बना देता है at a small distance away from the heap of rice. In this way, rice is here and husk is here. They get separated, and this happens with the help of wind. इसीलिए नाम है winnowing. So winnowing happens with the help of wind. Then next is sieving. क्या होता है? छानना होता है. So this method is used when, आपने देखा होगा, when house construction is going on, this kind of thing is used, जिसमें आप यहाँ पे on this area you put some sand and all, तो बड़े बड़े जो स्टोन है वो यहीं रह जाते हैं और नीचे यहाँ पे जो छन के नीचे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं they are separated from the mixture of gravel and stone, right? So what is sieving? Sieving is when two particles have different sizes. और sieve क्या होती है? जो mesh होता है, mesh मतलब जाली. They are fitted into frame and the size of the hole in the mesh varies for mixture to mixture. कुछ mesh जो होते हैं बहुत फाइन होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, जैसे आटा वगैरह छानने के लिए. कुछ बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि आपके केस मैंने बताया था सीमेंट को और ग्रेवल को अलग करने के लिए. सो फाइन सीव्स आर यूज्ड इन किचन्स and larger sieves are used to separate sand and stone for construction purpose. और ज्वेलर्स भी यूज़ करते हैं, जैसे पर्ल है, मोती हैं, बड़े बड़े मोती हैं, छोटे छोटे मोती को अलग करने के लिए वो भी एक सीविंग यूज़ करते हैं. फिर कैश्यू नट्स, काजू है, उनको भी सेपरेट करने के लिए बड़े काजू का जो साइज़ होता है छोटे काजू से, उनको अलग करने के लिए भी सीविंग यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन में आपको समझ में आ रहा है कि कोई एक चीज़ होगी जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होनी चाहिए दोनों मिक्सचर में से. अब यहाँ पे हमने आयरन और सल्फर का मिक्सचर ले लिया, तो sulfur is not attracted by the magnet, but iron gets attracted to the magnet. So we will bring a magnet near to this and iron will be separated. Iron यहाँ आ जाएगा और sulfur यहाँ आ जाएगा, तो sulfur will be left behind and iron will be taken away by magnet. तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन. ये मेथड तभी यूज हो सकता है जब मिक्सचर के एक कोई ना कोई एक कॉम्पोनेंट आयरन से अट्रैक्ट हो सके. देन नेक्स्ट इज सब्लिमेशन. नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग. आपने हीट किया, डायरेक्टली वेपर बन गया सॉलिड. ओके, लिक्विड स्टेट में नहीं गया. फॉर एग्जाम्पल कपूर, आपके घर में जो कपूर रखा हुआ है, कैम्फर बोलते हैं उसको, आप उसको जब आग लगाते हैं तो वो सारा वेपर में चेंज हो जाता है, कोई लिक्विड नहीं बचता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. तो अगर आपने जो भी मिक्सचर लिया है उसमें दो चीज़ें हैं और उसमें से एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है. सपोज आई टेल यू टू मिक्स कैम्फर एंड सैंड, यू नो कैम्फर विल सब्लाइम, तो आप उसको क्या करेंगे? यू विल हीट द मिक्सचर एंड कैम्फर विल सब्लाइम एंड यू कैन गेट बैक द sand. The solid substances which sublimes escapes as vapor and other one is left behind. Now let's see one experiment. This you have to draw in your copy also, this diagram. This is diagram of sublimation. Here we have taken ammonium chloride. ये ammonium chloride है and ammonium chloride is a sublimable substance. और उसके साथ हमने ऐड किया common salt. Common salt मतलब अपने घर में जो नमक होता है खाने वाला, NaCl. This NaCl is not sublimable and when we will heat it, vapors of ammonium chloride will go here. यहाँ हमने कॉटन लगा रखी है, बंद कर रखा है इसको, तो क्या होगा? ये जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे ऐसे करके और यहाँ पे आके ठंडे हो जाएंगे और उसके बाद में हम स्क्रैप कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे उसको. ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन सेपरेट सॉलिड मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ
sublimation. जो substance sublime कर जाता है और फिर उसके ऊपर उसको इकट्ठा हो जाता है, उसको हम sublimate बोलते हैं. So this is the setup. ये हमारा inverted funnel है. इस funnel को हमने एक evaporating dish के ऊपर डाला हुआ है. Then next method is solvent extraction method. Solvent मतलब आपको पता है जिस चीज़ में कोई चीज़ dissolve हो जाती है. तो suppose अगर आपके पास कोई ऐसा mixture है where you know that one thing can be dissolved in any liquid, तो आप क्या मेथड लगाएंगे? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड. सपोज आई गिव यू अ मिक्सचर ऑफ 1 स्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 स्पून ऑफ सैंड. तो आपको पता है कि सैंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है, जबकि सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है. तो आप इस मिक्सचर को कहाँ डालेंगे? पानी में डालेंगे और उसको स्टर कर देंगे. एंड व्हेन यू विल स्टर इट, यू विल सी दैट कॉमन सॉल्ट गेट डिज़ोल्व्ड इन वाटर, बट सैंड रिमेन्स देयर ओनली इन द वाटर. देन यू कैन फिल्टर. Sand will be on the filter paper and you will get the salty water. From this you will evaporate water and you will get back the salt. So mixture of sand and salt can be separated by this method. Now we have another solid liquid mixture. अभी तक हमने जितने भी देखे थे, hand picking, winnowing and sieving and magnetic separation, sublimation, वो किस किस के एग्जाम्पल थे? सॉलिड मिक्सचर के. बोथ वर सॉलिड. नाउ वी हैव अ मिक्सचर इन विच वन इज सॉलिड एंड वन इज लिक्विड. सो हाउ डू वी सेपरेट इट? सो फर्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन एंड decantation. Now what is sedimentation? Sedimentation is the settling down of heavy particle. लेकिन वो कैसा होना चाहिए? Insoluble. Okay, sedimentation can only happen when solid is insoluble in liquid. यानी heterogeneous mixture है तभी sedimentation हो सकता है. For example, if I add water and sand, तो sand उसमें mix नहीं होगी water के अंदर और heavy होती है तो नीचे की तरफ बैठ जाएगी. जब उसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे बैठा हुआ और उसके बाद हम ऊपर से उस पानी को बिना हिलाए निकाल लेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं decantation. So first we will see the definition of sedimentation. What is sedimentation? When heavy particles settle down and they are not disturbed. They are left undisturbed and all the particles will settle down, leaving the clear liquid on. So let's see, this is a mixture of sand and mixture of water. So this is a mixture now. You can see the sand particles here. All over sand particles are there. Leave it for some time. You will see that sand is deposited to the lower side of the beaker here as a sediment. तो इसको sediment बोलते हैं. और ऊपर ये जो clear liquid है, this clear liquid which is there is known as supernatant liquid. Remember the term. So the clear liquid which is above the sediment is known as supernatant liquid. Okay. Now this clear liquid which is there, this has to be poured out in another. So you can see here this mixture of sediment and supernatant liquid is poured on a glass rod. धीरे धीरे इस glass rod के ऊपर pour करते हैं धीरे धीरे और यहाँ पे clear water आ जाता है और इस beaker में ये जो sand है यहीं इसी beaker में छूट जाती है. तो we have separated clear water, that is supernatant liquid, from sediment. This process is known as sedimentation and this process, that is pouring down of clear liquid, is known as decantation. And why we are using glass rod here? We are using glass rod so that this mixture does not fall at once. धीरे धीरे आए, अगर हिल गया तो sand mix हो जाएगी. So this sedimentation and decantation only be done of heterogeneous mixtures. Now comes another term which is very important, loading. अब लोडिंग क्या है? लोडिंग भी एक तरह का सेडिमेंटेशन ही कराना है. बट व्हाट हैपन्स, सपोज सैंड है, थोड़ी मोटी वाली सैंड है तो आराम से नीचे बैठ जाएगी. लेकिन अगर क्ले पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी सेटल नहीं करते हैं, वो बहुत देर तक अगर आप पानी रखा रहने देते हैं, देन ऑल्सो यू कैन सी द क्ले पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन दैट वाटर. सो हाउ डू यू? You will take some chemical and you will add to this mixture and you will see that the fine particles, very fine solid particles also settle down faster. This process which is used is known as loading. और दूसरा नाम क्या है इसका? Coagulation. Please remember both the names because in exam it might be asked what is coagulation. So don't tell me we have not studied. So loading or coagulation. Coagulation means settling down of very fine particle with the help of special chemical.
तो जैसे कि अगर आपने रेन वाटर या पॉन्ड वाटर लिया तो आपने देखा ना पानी में थोड़ा मिट्टी मिट्टी सा होता है, और वो उसको बहुत देर तक रखा रहेंगे तब भी वो पानी में से येलोनेस नहीं जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत फाइन क्ले पार्टिकल्स हैं। तो हम क्या ऐड करते हैं उसमें, हम एक केमिकल ऐड करते हैं जिसका नाम है एलम, ठीक है, इसका पूरा नाम है पोटैश एलम। तो ये जो पोटैश एलम है इट एक्ट्स एज अ लोडिंग एजेंट, एंड हम क्या करते हैं, इसको एक धागे में बांधते हैं और उस ग्लास में जिसमें आपने वो रिवर वाटर डाला है उसमें थोड़ी देर के लिए आप उसको हैंग कर दीजिए या उसको पाउडर करके डाल दीजिए एलम को। आप देखेंगे कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो आराम से नीचे, बहुत फाइन पार्टिकल्स ऑल्सो सेटल डाउन इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर। तो एक तरह से क्या कर रहा है, फाइन पार्टिकल्स को लोड कर दे रहा है, मेकिंग देम हैवी, एंड दस इंक्रीजेज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ओके, आपके घर में एलम है, सबके घर में, यू कैन आस्क, आपके घर में फिटकरी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये जो फिटकरी होती है ये पहले के टाइम पे ज़्यादातर जो फादर लोग थे वो अपने आफ्टर शेव की तरह यूज़ करते थे, क्योंकि इसके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं एलम की। सो वो क्या करते थे, उसको दाढ़ी बनाने के बाद ना, शेव करने के बाद दे यूज टू रब दैट एलम ऑन देयर दैट शेव्ड पार्ट। सो दिस एलम इज एक्चुअली used for making fine particles heavy, so that rate of sedimentation can be increased. Here they are showing you how loading is done. This is mixture of muddy water, ये muddy water है, water and sand, बहुत fine particles हैं। आपने एक थ्रेड में एलम को बांधा, ये एलम है, और इसको थोड़ी देर घुमाया इसी वाटर में, यू विल सी दैट फाइन पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन हियर, एंड दिस इज क्लियर वाटर, ये बिल्कुल क्लियर वाटर है। सो टैप वाटर विच इज क्लीन्ड बाय एलम। इफ यू हैव एलम एट होम यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम ऑल्सो। जो पानी आपको कुछ साफ दिख रहा है टैप वाटर, उसमें भी आपको देखेंगे आप कि नीचे बहुत फाइन पार्टिकल्स बैठ जाते हैं। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट alum helps in faster settling of fine solid particles, and that tap water also contain fine, very fine dust particle, although it appears at very clear. So remember, filtration happens only when it is heterogeneous. And filtration में क्या यूज़ करते हैं आप, फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को जब आप पास थ्रू करते हैं एक फ़िल्टर से या कपड़े से छानते हैं तो भी उसको फिल्ट्रेशन ही कहते हैं ना। मसलिन क्लॉथ इफ़ यू यूज़, या बहुत बारीक आप सीव यूज़ करते हैं, छन्नी यूज़ करते हैं, स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ फिल्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल टी का, जो आप चाय बनाते हैं और टी को टी लीव्स से अलग करते हैं, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। So what is filtration? Let's see the definition. The process of separating insoluble solid particles from a liquid by allowing it to pass through a filter paper. Now let's see the diagram and we should understand. We have taken some water in a beaker और उसके साथ एक उसमें चॉक पाउडर मिला दिया है। ओके, चॉक पाउडर पानी में मिला दिया, उसको मिक्स कर दिया है। मिक्स नहीं होता है चॉक पाउडर, रिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। नाउ वी हैव टू टेक अ सर्कुलर फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर ऐसा होता है, पहले उसको हाफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फिर उसको एक बार और यहाँ बीच में से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। फिर 3 पार्ट एक तरफ रखे और 1 पार्ट एक तरफ रख के ऐसा कोन बनाएंगे, और इस कोन को कहाँ रख देंगे, इसके ऊपर, ये जो हमारा ये फनल है इसके अंदर रख देंगे, और इसके ऊपर से ये चॉक पाउडर वाला मिक्सचर डालेंगे। क्लीन वाटर यहाँ आ जाएगा और चॉक यहाँ पे सेटल हो जाएगी, इस तरह से चॉक आपको दिखाई देगी फिल्टर पेपर जब आप इसको खोलेंगे तो। That what is this clean liquid called after filtration? So remember the term, the clean liquid after filtration is known as filtrate, and the powder which is left on the filter paper is known as residue. So remember, what is residue? Residue is the insoluble solid which is left on the filter paper is called the residue. तो जब हम चाय छानेंगे तो छन्नी में जो चाय की पत्ती रह जाएगी वो residue, और जो चाय छन के कप में आ जाएगी दैट इज फिल्ट्रेट। ओके, एंड द लिक्विड विच पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। सो एग्जाम्पल कैसे कैसे चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, चॉक एंड वाटर, क्ले एंड वाटर, टी एंड टी लीव्स, सॉडस्ट एंड वाटर, these all are separated by the method of evaporation. What is evaporation? जब आप लिक्विड को हीट अप कर देते हैं और वो वेपर में चेंज हो जाती है, और जो सॉलिड उसमें मिली है वो कैसे रह जाती है, वो बची रह जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज evaporation. So let's learn the definition. Evaporation is the process of converting a liquid into its vapor state. वेपर स्टेट में चेंज कर देते हैं, कैसे, या तो उसको हीट कर देते हैं या उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, एयर में छोड़ दीजिए
तब भी इवेपोरेशन हो जाएगा, लेकिन जब एयर में छोड़ेंगे तो इवेपोरेशन का जो रेट होगा, स्पीड होगी, दैट विल बी वेरी वेरी स्लो। सो कैसे कैसे मिक्सचर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, ये आपका होमोजेनस मिक्सचर. Evaporation is used to separate homogeneous mixture in which liquid is evaporated and solid is left behind. For example, salt and water and sugar and water. तो sugar and water को हमने ले लिया और ऊपर से हमने, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सी वाटर में से सॉल्ट निकालना. टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर वी यूज इवेपोरेशन. और कैसे होता है ये, जो सी होता है उसके जहाँ पे सी के पास में जहाँ पे बहुत सारी सैंड होती है, उस सैंड में हम शैलो बेड्स बना देते हैं. ठीक है, उस शैलो बेड में पानी को डाल देते हैं. दैट सी वाटर इज लेफ्ट इन दैट शैलो बेड फॉर सम डेज एंड द सन evaporates the water and on the sand salt is deposited. और वो जो सॉल्ट होता है फिर उसको बाद में सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को रिफाइनरी में ले जाके उसको हम रिफाइन कर लेते हैं. व्हाट इज अ क्रिस्टल? इट इज अ डेफिनेट शेप एंड साइज का पार्टिकल. फॉर एग्जाम्पल शुगर का क्रिस्टल होता है ना, ऐसा आप करके आपको दिखाई देता है. हैव यू सीन वेरी स्मॉल these crystals of sugar you can see. So these crystals are fine particles which have a definite shape and size. और वो थोड़े से लश्चरस होते हैं, मतलब शाइनी से होते हैं. एग्जाम्पल शुगर क्रिस्टल्स, ये क्यूबिकल होते हैं and they shine. So what is crystallization? Crystallization is a process in which we obtain crystals of substance from a solution containing more solute than it can hold at a room temperature. Now you have to understand, suppose if I add sugar to 1 cup of water, 1 spoon, तो आराम से ऐड हो जाएगा. लेकिन अगर मैं उसमें 1 कप पानी में 1 कप शुगर ऐड करूँ तो नहीं ऐड होगी ना. तो मैं क्या करूँगी, पानी को थोड़ा सा गर्म कर दूँगी, जैसे आपकी मम्मी चाशनी बनाती है ना घर में. सो इफ़ यू ऐड दैट शुगर टू वाटर, गरम करने पे तो वो मिक्स हो जाएगी. लेकिन जब वो ठंडी होगी तो जो वाटर उसमें बचा है, जो वाटर है, एक्चुअली दैट वाटर कैन नॉट होल्ड दैट मच ऑफ शुगर दैट इज सोल्यूट हियर एट दैट टेम्परेचर. लेकिन अभी उसने ज़्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर रखा हुआ है जितना वो रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकती थी. तो अब इसको अगर हम इवेपोरेट करने के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो इसके अंदर सॉल्यूट है वो क्रिस्टल फॉर्म में बाहर आ जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. ओके, जैसे कि जो शुगर बनती है वो ऐसी बनती है. व्हाट दे डू, दे टेक आउट द शुगर केन जूस एंड देन दे हीट टू इवेपोरेट वाटर फ्रॉम इट. तो शुगर केन जूस को खूब अच्छे से हीट कर दिया, उसमें से वाटर निकल गया. अब उसमें से गाढ़ा गाढ़ा सॉल्यूशन बच गया, उसको खुले में छोड़ देते हैं ऐसे ताकि वो इवेपोरेट होने लगे. सारा पानी उसमें से इवेपोरेट हो जाता है और जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं उसके अंदर वो फॉर्म हो जाते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. सो व्हेन इट इज कूल्ड, शुगर स्टार्ट्स टू सेपरेट in the form of crystals. This is known as crystallization. How do you get a pure substance or a pure liquid from a solution? अभी क्या हुआ था, जब हमने सॉल्ट और वाटर में से वाटर को इवेपोरेट कर दिया था और सॉल्ट बच गया था. लेकिन सपोज मुझे वो वाटर भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, तो मैं कौन सा प्रोसेस यूज करूँगी, डिस्टिलेशन. तो व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. दोनों चीज़ें हो रही है इसमें, कंडेंसेशन. ठीक है, अभी हम देखेंगे तब हमें समझ में आएगा हाउ बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग हियर. राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया. अब मुझे पानी भी चाहिए और नमक भी चाहिए. ठीक है, तो मैंने इसको हीट करा, बंसन बर्नर से इसको हीट किया. वाटर यहाँ पे इवेपोरेट होके वेपर बन के यहाँ चला. अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया, कंडेंसर लगाया. कंडेंसर मतलब ठंडा करने के लिए. ये यहाँ पे ठंडा ठंडा हो रहा है, यहाँ पे दिस इज़ वेरी कोल्ड. तो ये जो कोल्ड हो रहा है बिकॉज यहाँ पे टैप वाटर से वाटर आ रहा है जो कि इसको ठंडा कर रहा है, इस वेपर को. अब ये वेपर यहाँ आके किस में हो जाएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा. तो ये हमें बिल्कुल प्योर वाटर मिल गया, वेरी प्योर वाटर. गॉट इट, प्योर वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है H2O, जिसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर. तो ये पानी यहाँ मिल गया और सॉल्ट यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, पानी सारा इवेपोरेट होके यहाँ आ जाएगा.
तो अभी मुझे सॉल्ट भी मिल गया प्योर फॉर्म में और मुझे वाटर भी मिल गया प्योर फॉर्म में, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ। सो व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज नथिंग बट इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन बोथ, और इसमें हमें दोनों चीज़ मिल जाती हैं। इवेपोरेशन में हमें लिक्विड नहीं मिलता है क्योंकि लिक्विड ऊपर चला जाता है वेपर में, वेपर फॉर्म में, लेकिन उस वेपर को अगर हम कंडेंस कर लें, ठंडा कर लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें लिक्विड भी मिल जाएगा। Got it? So this is known as distillation. What is the definition? It is the method of getting pure liquid from a solution by evaporation and then condensation. So the pure water which we get or pure liquid which we get is known as distillate. ठीक है, वहाँ पे filtration में filtrate था, यहाँ पे distillation में distillate. This distillate is pure liquid which we get after distillation. And this pure water, इस example में जो pure water है, it is used by doctors for preparing medicine because that is only the purest form of water. Advantage क्या है distillation का evaporation से? Because in evaporation we don't get both the things, but in distillation we get both the components, that is solid component also and liquid component also. Separation of gas liquid mixture, जहाँ पे एक gas liquid में mixed है, उसको कैसे separate करते हैं? This can be done by heating. हीट कर दीजिए आप उस लिक्विड को और उसमें से गैस इवेपोरेट हो जाएगी। सो डिजॉल्व्ड गैसेस एस्केप्स फ्रॉम द लिक्विड ऑन हीटिंग। कोई भी लिक्विड है, जैसे वाटर भी है, अगर वाटर को आप हीट करेंगे तो उसमें जो डिजॉल्व्ड गैसेस हैं वो सब उसमें से निकल जाएंगी। इसीलिए बॉइल्ड वाटर जो होता है वो बिल्कुल टेस्टलेस होता है, क्योंकि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसमें सम एयर इज ऑल्सो डिजॉल्व विच गिव्स द वाटर इट्स टेस्ट। तो जब आप उसको बॉईल करते हैं वो एयर एस्केप कर जाती है, निकल जाती है, और बॉइल्ड वाटर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है एकदम, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, बिकम्स टेस्टलेस। गॉट इट? तो क्वेश्चन कम्स, व्हाई बॉइल्ड वाटर बिकम्स टेस्टलेस? बिकॉज when boiled the air escapes and air gives taste to that drinking water. Now this is the chart to revise whatever we have studied till now. अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको हमने यहाँ पे रिवाइज किया है। हैंड पिकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेंगे आप इस पूरे टेबल को। हैंड पिकिंग कब हो सकती है? व्हेन द पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ, एग्जाम्पल स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम राइस एंड पल्सेस। विनोइंग कैन बी डन with light and heavy particles are mixed together, like example rice and husk, sand and dry leaves. Sieving, when components of mixtures are of different sizes, example rice powder and small stone particles. Magnetic separation, when one component is magnetic in nature, example iron and sulfur. Sublimation, when one component can sublime, sand and ammonium chloride. Solvent extraction, when one of the solid is soluble in liquid, example sand and salt. Then solid and liquid heterogeneous, sedimentation and decantation. Loading, filtration, evaporation, crystallization and distillation. So this is the chart which you have to revise and learn so that all the concepts are clear. So thus we finished this chapter, that is pure substance and mixtures and separation of mixtures. If you liked my video, my way of teaching, subscribe to the channel and share it with your friends.